لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اندر سے بیگم صاحبہ کے بولنے کی آواز سنائی دی اور رشید صاحب چونک پڑے۔ بیگم صاحبہ شاید اسی طرف آ رہی تھی اور پھر وہ کمرے میں آ گئی۔ تشریف لائیے بیگم صاحبہ۔ رشید بھائی، برسوں کی محبت کو یوں ٹھکرا دیں گے؟ گمان بھی نہ تھا ہمیں۔ عزت پر بن گئی تھی بیگم صاحبہ۔ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں یا خودکشی کر لوں۔ واللہ کوشش کے باوجود برداشت نہ کر سکا، ورنہ یہ قدم نہ اٹھاتا۔ کوثر تو دیوانی ہے، آپ جانتے ہیں، میری خطا نہیں ہے۔ اللہ اس بچی کو سلامت رکھے، اللہ اسے خوش رکھے۔ آپ اسے سزا دیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر وہ مجھ سے کچھ کہہ لیتی تو مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن وہ انسان شناس نہیں ہے۔ سرفراز کیا ہے یہ صرف میں جانتا ہوں۔ مجھے بھی دکھ ہے، لیکن آپ ہمیں یوں نہ چھوڑیں بھائی صاحب۔ نواب صاحب کو تو آنے دیں۔ بخدا پورا دن یہاں صرف کروں گا۔ فیروز الدین نے ہمیشہ مجھے دوست سمجھا ہے، آپ کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اس ملازمت سے بری الذمہ ہو جانے دیں۔ سرفراز میاں، تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ رشید بھائی کو سمجھاؤ۔ خدا رب بیگم صاحبہ ہمیں مجبور نہ کریں، مجھے حکم دیں، میں خودکشی کر لوں۔ رشید الدین صاحب جذباتی لہجے میں بولے، تو پھر سن لے رشید بھائی، میں کوثر کو بلا کے لاتی ہوں۔ اگر اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سرفراز میاں سے معافی مانگ لی اور انہوں نے اسے معاف کر دیا تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا، ورنہ پھر ہمارا بھی اللہ مالک ہے۔ بیگم صاحبہ رشید صاحب کا جواب سنے بغیر واپس پڑ گئی۔ انسان شناسی سکھاؤ اسے، انسان شناسی، ورنہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے گی۔ رشید صاحب بڑبڑا کر رہ گئے۔ میں نے خاموشی ہی مناسب سمجھی، ویسے اپنی ذات کے اس ہنگامے سے مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ بلا وجہ بات اتنی بڑھ گئی۔ اگر رشید صاحب وہاں نہ آ جاتے تو میں دوسری وردی پہن کر بات برابر کر لیتا۔ بہرحال معاملات اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ اب انہیں سنبھالنا مشکل تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن کوثر نہ آئی۔ میں اس ضدی لڑکی کی فطرت سے واقف تھا، وہ کبھی نہیں آئے گی، لیکن حالات نے عین وقت پر ایک اور کردار پیش کر دیا، اور یہ کردار بڑا بروقت تھا۔ دو ملازم دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے رشید صاحب سے کہا، حضور نواب صاحب واپس آ گئے ہیں، آپ کو طلب کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کل صبح حاضر ہو جاؤں گا، اس وقت مصروف ہوں۔ ملازم ہکا بکا رہ گئے۔ رشید صاحب وہ جاؤ۔ ملازم جلدی سے باہر نکل گئے۔ رشید صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ فیروز بھی بس اسی وقت آتا ہے، اسے۔ میں نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اب میں نے رشید صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ابے او مینیجر صاحب، ابے رشید بھائی۔ دفتن باہر سے گرجدار آواز سنائی اور رشید صاحب چونک پڑے۔ وہ جلدی سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا۔ آنے والا ایک طویل القامت اور وجیح بوڑھا تھا، چڑھی ہوئی گھنی مونچھیں، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، فرینچ اسٹائل داڑھی، بے حد شاندار شخصیت تھی۔ ہیں ویسے کہ ویسے ہی ہو، ذرا بھی نہیں بدلے، آنے والے نے کہا اور آگے بڑھ کر رشید صاحب سے لپٹ گیا۔ اور یہ اتنے بدماش کب سے ہو گئے؟ ویسے ہی ہم باہر سے آئے ہیں اور تم نے ہمیں اس سفر کی زحمت دے دی۔ نواب صاحب آپ بخیر ہیں؟ آئے تمہاری بلا سے، اور سنا تم یہاں سے جا رہے ہو۔ میں ملازموں سے کہہ آیا ہوں کہ فوارے کے پاس ایک قبر تیار کرو فوراً، ابھی تمہاری گردن کاٹوں گا اور پھر اس قبر میں دفن کر دوں گا۔ زندگی میں تو تمہارا جانا مشکل ہے بیٹا۔ نواب صاحب، رشید صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ابے ایسی کی تیسی نواب کی، بھابھی بھابھی۔ نواب فیروز الدین نے آواز دی، آئے بھائی صاحب۔ بیگم رشید سر پر دوپٹہ سنبھالے اندر آ گئی۔ بیوہ ہونے کے لیے تیار رہیں، مار ڈالوں گا تمہارے اس شوہر کو، مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اور ذرا کہکشا چائے کے لیے تو کہیں جلدی۔ ابھی کہتی ہوں بھائی صاحب۔ بیگم رشید زیر لب مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ابے تجھ سے اچھی تو تیری بیوی ہے، کس بھرے منہ سے بھائی صاحب کہتی ہے؟ بہنوئی بن کر اکڑ دکھاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ مجھے جانا ہی ہوگا نواب صاحب۔ جاؤ بھائی جاؤ، تمہاری تو مری جانے کی ہے، مگر اس کے لیے میرے ہاتھ کے خون سے رنگوا رہے ہو؟ ایسے یہ تو بتاؤ بات کیا ہوئی ہیں؟ اور یہ کون ہے؟ اب انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نواب صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اما ہو کون بھائی؟ یہ سرفراز میاں ہے۔ خوب ہے، ارے اما آگے آؤ، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو؟ نواب صاحب نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ دوسرے قسم کا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سادگی اور خلوص دیکھا۔ تو آپ سرفراز میاں ہیں؟ اگر کیوں ہیں، کون ہے؟ اس بارے میں تو کچھ انکشاف ہو جائے۔ آپ تشریف تو رکھیں نواب صاحب، میں عرض کر دوں گا۔ رشید صاحب نے کہا، بے کیا عرض کرو گے؟ بچپن کی دوستی کو لات مار کر یوں جانے کی کوشش کرو گے؟ معلوم نہ تھا، مگر یہ تمہیں سوجی کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کون سے سوال کا جواب دوں۔ ہاتھ جواب دو گے؟ بھابھی تھوڑی سیوئیاں بھی پکا لے، وہی زعفرانی والی۔ اور یہ لڑکیاں کہاں چلی گئیں سب کے سب؟ ابے ہاں، تم تو میری بات کا جواب دو نا۔ آپ سوال تو کریں نواب صاحب، کیوں جا رہے ہو؟
आप संजीदगी से सुनेंगे तो गोया मैं तुम्हें गैर संजीदा नजर आता हूँ, क्यों? नवाब फिरोज ने आखिरी बात मेरी तरफ देखकर कही और मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। जी नहीं, जीते रहो। तो तुम जवाब नहीं दोगे? वो फिर रशीद साहब पर उलट पड़े। मैं जवाब दे रहा हूँ नवाब साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि मैंने बचपन की दोस्ती और आपकी इनायत से कभी कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। सख्त नामा खोलो, आगे बोलो। अब इस शख्स का तारुफ जरूरी है। मुझे ट्रेन में मिला था, दिल्ली से आ रहा था, नेक और शरीफ बच्चा था और दिल्ली के लिए अजनबी। मैं इसे अपने साथ ले आया, मुलाजमत का मतलाशी थी। आप मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई मुनासिब जगह ना दिलवा सका, लेकिन बेगम साहिबा को ड्राइवर की फौरी ज़रूरत थी, इसलिए ड्राइवर की हैसियत से रखवा दिया। हैं? ड्राइवर की हैसियत से? अहमक हो, सख्त नामाकुल हो, बिल्कुल फजूल हो तुम। तालीम याफ्ता नौजवान है, मैंने तो पहले ही बेगम साहिबा को बता दिया था। बहरहाल इस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन नवाब साहब, बखुदा कौसर मेरी बच्ची है। आप जानते हैं वो अक्सर इसकी बेइज्जती करती रही है, लेकिन आज जो इसने मेरे सामने इसकी बेइज्जती की वो मैं बर्दाश्त ना कर सका। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रशीद साहब की आवाज़ पर ओह। नवाब साहब भी संजीदा हो। उसके बाद खामोशी छा गई। नवाब साहब के चेहरे पर शगुफ्तगी पर संजीदगी की चादर पड़ी। वो अपनी जगह से उठे और मेरे नज़दीक आ। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। बैठो बेटे बैठो। सबसे पहले तो मैं नामाकूल रशीद अहमद की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि उसने तुम्हें ड्राइवर की मुलाजमत दी, जबकि मैंने उनसे सिलसिले में कभी कोई सवाल नहीं किया कि मकामी उमूर में क्या हो रहा है। मैंने उन्हें कुल इख्तियारात दिए हैं, लेकिन इस शख्स ने हमेशा खैरियत का सबूत दिया। दूसरी बात कौसर की है, तो बेटे वो तरकश से निकला हुआ एक तीर है। दरअसल शादी के 12 बरस तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। जब कौसर पैदा हुई तो मैं सब कुछ भूल गया। मेरे प्यार ने उसकी शख्सियत को दाग लगा दिया। उसका मुजरिम भी मैं हूँ। तुम्हारा दिल दुखा है तो मुझे माफ़ कर दो बेटे। नवाब साहब, बात माफ़ी की है बेटे, माफ़ कर दो। दरअसल कसूर मेरा है, मुझे माफ़ कर दो। कौसर के अल्फाज तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी पेशानी कुशादा है, इससे फराग दिली का पता चलता है। उस सरकश लड़की के बाप को माफ़ कर दो। नवाब साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे शर्मिंदा मत करें। तो फिर दिल से कौसर की बदतमीजी को भुला दो। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। खुदा तुम्हें खुश रखे। वजह मैं बता चुका हूँ, और अब तुम जाओ। नवाब साहब रशीद साहब की तरफ पलटे, लेकिन उसी वक्त बेगम रशीद सेवैयाँ और चाय लेकर आई। नवाब साहब उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। बच्चियाँ क्या कर रही हैं भाभी? वो सामान बांध रही हैं। आग लगवा दूंगा, बखुदा आग लगवा दूंगा मैं। अम्मा मेरे बस की तो बात नहीं है। इससे गलती हुई तो 2-4 थप्पड़ लगा दो, कोई उफ कर जाए तो गोली मार दो। खैरियत का सबूत क्यों देते हो? नवाब साहब की आवाज़ बता रशीद साहब के चेहरे पर तासुर कर दिया। नवाब साहब ने सर झुका लिया था। सेवैयाँ लीजिए भाई साहब। नहीं खाऊंगा, चाय भी नहीं पीऊंगा। यह है कौन मेरा? बस नहीं खाऊंगा। और रशीद साहब हंस पड़े। दांत तोड़ दूंगा, बखुदा दांत तोड़ दूंगा। बताओ, क्या मैंने तुम्हें भाई के अलावा कुछ समझा है? तुम्हारी मौजूदगी में तो मैं पूरे घर से बेनियाज हूँ, हट से आवारागर्दी करता हूँ। मुझे कत्ल करना चाहते हो? बोलो, खुदकुशी कर दूं मैं? मैं शर्मिंदा हूँ नवाब साहब। जाओगे? नहीं तो फिर आओ, सेवैयाँ खाओ। खुदा की पनाह, सेवैयों का मज़ा ख़राब कर दिया। नवाब साहब मेरी तरफ देख कर बोले, मियाँ आओ, सेवैयाँ नहीं खाते क्या? ज़रूर खाता हूँ। इतने उम्दा आदमी की लड़की की बात का भला क्या बुरा मनाऊँ? मैंने दिल में सोचा, और फिर सेवैयाँ और चाय चलने लगी। बेगम रशीद ने वापस जाकर सामान खुलवा दिया था। रात को बेगम साहिबा फिर आई। उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा किया, लेकिन कौसर नहीं आई। वो लोग उसे लाने में नाकाम रहे थे और बेबस नजर आ रहे थे। माजरत रशीद साहब को भी तुमसे करनी चाहिए मियाँ, जिन्होंने अपने इख्तियारात को नज़रअंदाज करके तुम्हें ड्राइवर की मुलाजमत दी, जबकि घरेलू इंतजामी उमूर के लिए हमें एक निगरान की सख्त ज़रूरत है। मैं आपकी इजाज़त के बगैर इतनी बड़ी मुलाजमत किसी को नहीं दे सकता था। बकवास करते हो तुम। बहरहाल तुम्हारी सलाहियतों के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि तुम रशीद साहब के चहीते हो। कुछ कमी होगी तो ये संभाल लेंगे। दरअसल मैं अमूमन बाहर रहता हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान अगर रशीद साहब की मदद के लिए मौजूद हो तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। जी, चुनाचा कल से तुम रशीद साहब के साथ हवेली के इंतजामी उमूर संभालोगे। बहुत बेहतर जनाब। काम समझाने के मामले में रशीद साहब से बेहतर उस्ताद और कौन मिल सकता है? और तनख्वाह? तो इस सिलसिले में मैं तुम्हें इस कंजूस शख्स के सुपुर्द कर दूंगा, तो ये तुम्हें क्या देगा? मेरे ख्याल में 1500 ठीक है, और मेरी वापसी पर इसमें इजाफा हो जाएगा। जी, और जिस मोई वर्दी पर झगड़ा हुआ था उसे आज ही आग लगा दो, अभी इसी वक्त। फिर बेगम साहिबा ने पर्स से नोटों की गड्डी निकालकर रशीद साहब को देते देखा। रशीद भाई, बच्चे के लिए उम्दा सूटों का कपड़ा कल खरीद कर दर्जी को दे दो, फौरी तौर पर सिल जाएंगे। बेगम साहिबा, इसकी क्या ज़रूरत है भला? तुम चुप रहो जी।
नवाब साहब ने रशीद साहब को डांट पड़ा। ज्यादा गड़बड़ की ना तो तुम्हें भी 1 दर्जन शेरवानियां सिलवानी पड़ेंगी। सब लोग हंसने लगे। चनाचे कौसर के नकचड़ेपन ने मेरी जिंदगी की एक जरूरत पूरी कर दी। लेकिन क्या ये मेरी जिंदगी का कोई अहम मोड़ है? शायद इन लोगों ने यही सोचा होगा। लेकिन सादा दिल लोग मेरे दिल की गहराइयों तक कहाँ पहुंच सकते थे। दूसरे दिन मैं रशीद साहब के साथ हवेली के दफ्तर पहुंच गई। काफी बड़ी जायदाद, बहुत से कारखाने थे, खासा काम था। रशीद साहब मुझे इब्तदाई बातें समझाते रहे। खुद वो एक सादा सी मेज कुर्सी पर बैठते थे, लेकिन मेरे लिए एक आबदोसी मेज खरीदी गई। और जब मैं उस मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा तो रशीद साहब की खुशियों का क्या ठिकाना था। ना जाने बी कौसर को इस बारे में मालूम हुआ था या नहीं। बहरहाल 2 दिन गुजर गए, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। वैसे मैं मुंतजर था कि एक बार वो नजर आए, लेकिन वो नजर ही नहीं आई। दुलारे मियाँ को भी शायद अल्लाह ताला ने अक्ल दे दी थी, वो भी नजर नहीं आई। बहरहाल मैं अपना काम करता रहा। मुझे इस काम में लुत्फ आने लगा। शाम को अक्सर नवाब साहब के साथ नशिस्त रहती थी। बहुत जिंदा दिल इंसान थे, मुहिम जोई के शौकीन थे, सैर व शिकार से बेहद दिलचस्पी रखते थे और अक्सर उनकी ज़िंदगी मुहिमात में गुजरी। उन्होंने अपनी मुहिमात के कई किस्से सुने और ना जाने क्यों मैंने अपने जहन में एक ही राह खुलती महसूस की। मैं नवाब साहब के उन किस्सों में दिलचस्पी लेता था। आपने अफ्रीका के अंदरूनी हिस्से देखे नवाब साहब? मैं, जो बराह रास्त नवाब साहब से बहुत कम मुखातिब होता था, अचानक ही पूछ बैठा। दर्जनों बार मैं उसके मुख्तलिफ हिस्सों में जा चुका हूँ, लेकिन यूँ समझ लो कभी कुछ देखा नहीं। अफ्रीका के रिवायती ख़जानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? सच पूछो मियाँ तो वो खित्ता कुदरत की फयाजियों से माला माल है। अहले दुनिया जिन चीज़ों को बेहद कीमती समझते हैं, उसके बाज़ इलाकों में वो मामूली संग्रेज़ों की तरह बिखरी पड़ी हैं। क्या आपने ऐसा कोई इलाका देखा है कभी? हाँ, मेरे ख़जाने में अफ्रीका के अलमास मौजूद हैं। ऐसे अलमास जो शायद बड़े बड़े उमरा ने भी ना देखे हों। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या तुम्हें हीरों से दिलचस्पी है? हीरे मैंने कभी देखे ही नहीं जनाब। नवाब साहब की उस गुफ्तगू के बाद मेरे जहन में अफ्रीका के भंवर पड़ने लगे। ना जाने क्यों जहन में ये ख्याल आ घुसा कि मैं भी इस पुरस्कार बर्र-ए-आज़म में जाकर किस्मत आज़माऊं। मुमकिन है मेरी किस्मत भी बदल जाए और मैं कुछ बन जाऊं। और सच्ची बात तो यह है कि इस तसव्वुर ने मुझे एक अजीब जहनी सुकून बख्शा। शायद ये वो था जो मैं समझ ना पाया था। शायद मेरे अंदर ही सब कुछ था। मैं किसी अंदाज में कुछ बनना चाहता था। 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान में कोई नई बात न हुई। एक ड्राइवर रख लिया गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कौसर एक बार भी मेरे सामने नहीं आई थी। दुलारे मियाँ भी नजर नहीं आए। न जाने वो कहाँ मर गए थे। बहरहाल मैं खुद भी उसे छेड़ना नहीं चाहता। चनाचा मैं खामोशी से काम करता रहा। मेरे काम से खुद रशीद साहब बड़े खुश थे और अक्सर मुझसे कहते थे, भाई बड़े बासलाहियत आदमी हो, मुझे तो तुम बिल्कुल ही काहिल करके रख दोगे। फिर एक शाम नवाब साहब मौजूद, रशीद साहब भी। नवाब साहब बोले, मुझे तो महसूस हो रहा है जैसे कैद हो गया हूँ, लेकिन बेगम साहिबा से वादा किया है कि पूरे इत्मा क़याम करना पड़ेगा। कहीं गिरदोनवा की सैर कर डालें, शिकार का प्रोग्राम बनाया है। तो वहाँ आइए, वो राना फारूक अहमद ने दावत दी है। शादरे के गिरदोनवा में पाड़ा और तीतर मिल जाते हैं शायद। रशीद साहब उन मामला से वाकिफ नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में एक हुक उठी। मेरी आंखों में अपनी राइफल घूम गई और फिर मेरे दिल में एक धुआं सा उठने लगा। भाई सरफराज मियाँ। जी नवाब साहब। तुम तो ड्राइविंग भी कर लेते हो ना? जी। तो क्यों ना हम तुम्हें 2-3 रोज के लिए रशीद साहब से उधार मांग लें? ज़रूर ज़रूर। रशीद साहब बोले, जीप से शादरे चलेंगे, सैरो शिकार रहेगा। मियाँ दुनिया की और दिलचस्पियों से भी लुत्फानंदोज होना चाहिए। मैं तैयार हूँ नवाब साहब। बहुत खूब, लुत्फ रहेगा। सच्ची बात तो यह है कि मैं तन्हा नहीं जा सकता था। अब तुम साथ हो तो जाने की इजाज़त मिल जाएगी बेगम से। मैं आपके साथ चलूँगा। हैं? तो फिर तैयारियाँ करो, कल ही चल रहे हैं हम। बहुत बेहतर जनाब। मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए कहा और फिर ज़रूरी उमूर तय पा गए। यह रात अजीब कश्मकश में गुजरी थी। दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। घर के लोग याद आ रहे थे और उन तमाम ख्यालात के दौरान दिल में एक खुशी का एहसास भी था। मुमकिन है नवाब साहब के साथ शिकार का मौका भी मिल जाए। शिकार और मुहिम जोई मेरी ज़िंदगी थी। ना जाने रात के कौन से पहर में सोया। सुबह बहुत जल्दी आँख खुल गई, शेव की, और जब रशीद साहब जागे तो मैं गुस्ल वगैरह से फारिग हो गया था। अरे खैरियत, आज इतनी सुबह? हाँ बस आँख खुल गई। ओ शायद सैरो तफरी की खुशी है। जी शायद। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रशीद साहब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं मियाँ, ज़रा कहकशा को आवाज़ तो दो, चाय पियेंगे। जाग गई होगी वो? अभी तो सुबह है। नमाज बाकायदगी से पढ़ती है, पढ़ चुकी होगी। बेहतर। मैं बेतकल्लुफ़ी से अंदर चला। अब मेरी हैसियत घर के एक फर्द की सतह और किसी भी जगह आने जाने में
कोई रोक टोक नहीं थी। मैं अंदरूनी कमरे की तरफ चल पड़ा और फिर दरवाजे में कदम रखते ही ठिठक। एक बेहतरीन नूर मेरे सामने थी। सादा से सफेद लिबास में मलबूस, सफेद दुपट्टा जिससे पेशानी तक ढकी हुई, धुली धुली और नूर आंखें जिनमें खुदा बुजुर्ग बरतर की अपनी तरफ झांक रही थी। सफेद सफेद हाथ दुआ के लिए फैले हुए थे। ना जाने वो खुदा से क्या मांग रही थी। मेरे कदमों की आहट पर उसकी आंखें मेरी तरफ उठी और मैंने उन आंखों में एक अजीब सी रोशनी देखी। आज की कहकशा हमेशा से मुख्तलिफ थी। मैं उसे देखता चला, वो भी किसी शहर में गिरफ्तार हो गई थी। ना जाने कितनी देर गुजरी और फिर रशीद साहब की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका। हम दोनों ही उछल पड़े। हाजिर हुआ, मैंने कहा और कहकशा ने जल्दी से दोनों हाथ चेहरे पर फेर लिए। फिर मुझे सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगी जा रही थी। कहकशा शर्मा गई। इस दुआ में हम भी शामिल थे या नहीं? उसकी निगाहें झुकती। हाजिर हुए थे चाय के लिए? जी, अभी लाई। मैं जहन पर एक अजीब सा बाढ़ लिए वापस चलता हूँ। रशीद साहब अब ताज़ा कर रहा था। नवाब साहब तुम्हें बेहद पसंद करने लगे हैं। जी, वो बहुत सादा और नेकदिल इंसान है। मेरे बचपन के साथी हैं। हमने एक ही स्कूल में तालीम हासिल की थी। मेरे वालिद साहब भी फिरोजुद्दीन मरहूम के वालिद मरहूम के मुलाजिम थे। बड़े आला लोग हैं। क्या मजाल जो मुझे मुलाजिम समझा हो। मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ सका। जी हाँ भाई, मैं नहीं समझ सका। क्या? जब मैं समझ नहीं सका तो तुम्हें क्या समझाऊँ? उनकी इस बात पर मुझे हंसी आती। हंसने की बात नहीं है सरफराज मियाँ, ये हकीकत है। जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो बुरी तरह उलझ जाती हूँ। मेरे बारे में? हाँ, मेरे बारे में क्यों सोचता है रशीद साहब? अहमक हूँ, दीवाना हूँ, लेकिन मैं ही क्या, हर शख्स अहमक होता है। मैं एक बेहकीकत इंसान हूँ, एक मामूली से हैसियत का इंसान जिसका दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप जैसी हस्ती का सहारा ना मिलता तो बेकसी और तन्हाई का एहसास कब्र तक ले जाता। ये खुदा ना करे मियाँ, अब तुम तन्हा नहीं हो। काश मैं आपके इस खुलूस का कोई सिला दे सकता। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब का मुलाजिम आ। क्या बात है शादो? हुजूर, नवाब साहब ने भेजा था कि सरफराज में अगर ना जागे हो तो उन्हें जगा दिया जाए। सुबह ही सुबह निकल लेंगे, वरना फिर दोपहर में सफ़र करना पड़ेगा। नवाब साहब तैयार हैं क्या? जी हाँ, बरामदे में बंदूक लिए टहल रहे हैं। ओह, तो फिर मैं चलता हूँ रशीद साहब। हाँ भाई, दरअसल गलती हो गई। रात को ही मालूम कर लेना चाहिए था कि किस वक्त रवानगी का इरादा है। कहकशा से कह दिया जाता तो नाश्ता तैयार हो जाता। क्या नवाब साहब ने नाश्ता कर लिया? जी साहब, वो कह रहे थे कि राना फारूक साहब के साथ नाश्ता करेंगे। अच्छा फिर ठीक है। चादरा है ही कितना दूर? रशीद साहब मेरे साथ ही कोठी के बड़े हिस्से की तरफ। नवाब साहब दरहकीकत तैयार थे। एक खूबसूरत कर मुल्की राइफल लिए वो बेहद वजीह नजर आ रहा है। बहुत खूब, वो आप भी तैयार हैं? दरअसल मैं रात को कहना भूल गया था कि सुबह ही सुबह निकल चलेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं सुबह ही उठ गया था नवाब साहब। तैयार हो? जी हाँ, तो फिर चलो जाए रशीद साहब। खुदा हाफिज़ नवाब साहब। शादू? जी हुजूर। जीप तैयार है? बिल्कुल तैयार है हुजूर। आओ सरफराज में। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। 2-3 रोज़ में लौट आएंगे। एक कीमती जीप तैयार हुई थी। उसमें भी 2 राइफलें और काफ़ी तादाद में कारतूस रखे, कुछ दूसरा सामान भी। नवाब साहब एक सादे से कुर्ते पैजामे में, लेकिन उनकी वजाहत लिबास की मोहताज नहीं थी। वो मेरे बराबर में ही बैठ गए और मैंने स्टीयरिंग संभाल ली। यूं हम कोठी से निकल आए और जीप बर्फ रफ्तारी से दौड़ने लगी। अपलोड्स के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें।